प्रभु यीशु के नाम में शलोम, प्रभु की स्तुति हो। Am I speaking to an empty church this morning? Shalom and praise the Lord. शलोम। Hallelujah. हालेलुया। Like we Yeah, worship amen. this morning, our Lord doesn't change. He is the same yesterday, today and forevermore. आमीन। जैसे हमने आज आराधना सुबह की, उसमें गाया हमने लफ्ज गाए, हमारा परमेश्वर कल, आज और हमेशा के लिए वैसा ही है, कभी भी नहीं बदलता। Jehovah is in the house. यहोवा आज इस भवन में हाजिर है। His हालेलुया। spirit dwells inside of us. उसकी आत्मा हमारे अंदर वास करती है। And God is going to speak to us this morning. और जरूरी परमेश्वर उसके कलाम के द्वारा हमसे बातें करने जा रहा है। God has a word for everyone here this morning. हर एक जन के लिए परमेश्वर के पास एक वचन आज है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Hallelujah. So good to see you all here. और सबको देख के बड़ा आनंद हो रहा है। So this morning we're going to go straight to the word. आइए आज सुबह हम सीधे कलाम में जाएंगे। Spirit of the living God, we come to you in prayer. जिंदा जीवित परमेश्वर की आत्मा, तेरे सामने आज हम प्रार्थना में झुकते हैं। We thank you for your presence in this room. तेरे उपस्थिति के लिए इस कमरे में जो आज है उसके लिए धन्यवाद For देते you हैं, are our Holy Spirit. क्योंकि तू पवित्र आत्मा, पाक रूह है। For you are the Spirit of a holy God. तू एक पवित्र परमेश्वर की आत्मा है। And your children और तेरे बच्चे are saints, ये संत हैं set apart. जिनको तूने अलग कर दिया है। For we are part of a different and a आमीन। wonderful kingdom. क्योंकि हमें तूने एक अद्भुत राज्य के, हमें तूने एक भागीदार बनाए This हैं। morning, Holy Spirit, feed us with your word और आज सुबह पवित्र आत्मा तेरे कलाम के द्वारा हमें तू भर दे, and let it bear good fruit. और हमारे द्वारा उत्तम फल हमारे अंदर से निकलने दे। We pray and ask all these things in the holy name of आमीन। Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम से ये सारी बातें मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. आमीन। Amen. Hallelujah. आमीन। So this morning, we're going to go to the book of 2 Timothy, chapter 4, verse 2. आइए आज हम कलाम में जाएंगे 2 तिमुथियुस की पत्री में। This is going to be our main verse for this morning. 2 तिमुथी 2 Timothy, chapter 4, verse 2. 2 तिमुथियुस 4 और दूसरा पद, ये हमारा मुख्य वचन आज के लिए होने वाला है। So it says, preach the word, यहाँ पर लिखा है, तू वचन का प्रचार कर, be instant in season, समय में तैयार रह। preach the word, be instant in season, out of season, समय और असमय तैयार रहे, reprove, और सबको डांट और समझा। rebuke, डांट और समझा, exhort with all long suffering and doctrine. सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे। Amen. So in another version it says, preach the word of God, be prepared. दूसरे अनुवाद में लिखा है, परमेश्वर का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर और हमेशा तैयार रहे। This is from the New Living Translation. Whether the time is favorable or not, वहाँ पर लिखा है न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में, चाहे समय आपके लिए अच्छा हो या ना हो, patiently correct, तो बड़े धीरज से डांटना, correct, rebuke, डांटना, और वहाँ पर लिखा है उल्हाना करना, and encourage your people with good teaching. समझ देना और अच्छे सिद्धांतों को सिखाकर तुम्हारे लोगों को प्रोत्साहित करना। Hallelujah. Amen. So it says patiently correct. This is the word of God. सुनिए, यहाँ पर लिखा है बड़े धीरज से डांटना या किसी को आप सही कर देना। This is Paul writing to the church at Ephesus, and the pastor there is Timothy, who is a very young man. तिमुथियुस को पौलुस ये लिख रहा है। अब तिमुथियुस कौन था? उस कलीसिया का पासवान था, बड़ा जवान था। And he was a spiritual son of Paul. पौलुस का एक आत्मिक पुत्र तिमुथियुस था। So he is giving Timothy instructions. अब तिमुथियुस को पौलुस सूचना दे रहा है। You know, I wish I was
Timothy and I have been giving instruction by Paul himself. ध्यान से सुनिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता था अगर मैं तिमुथियुस होता था और अगर पौलुस स्वयं आकर मुझे अगर सिखाता। There is no better teacher than the Apostle Paul. That's right. प्रेरित पौलुस से और उत्तम शिक्षक किसी को भी नहीं मिल सकता And when है। you read the epistles, you'll find that Paul's instructions came from Jesus himself. आप पौलुस के पत्रों को जब पढ़ेंगे आप देखेंगे पौलुस को जो सूचनाएं मिले किससे मिले? यीशु मसीह से सीधे मिले। Hallelujah. That's And we're right. going to continue next week also. It's a two-part. This first sermon it's got two parts. और इस आज के प्रचार को दो विभाग है, इसलिए आगे वाले हफ्ते में इसी प्रचार को जारी रखने वाले हैं। So today it says favorably correct. वहाँ पर लिखा है कि आप बड़े समझ बुद्धि से लोगों को डांटना, उनको सिखाना, But today I'm not going to be correcting anything. सहनशीलता से। लेकिन आज सुनिए, किसी को मैं डांटूंगा नहीं, किसी में सुधार लाने की मैं कोशिश नहीं rebuke. करूंगा, Or rebuke. या किसी को उल्हाना यहाँ पर लिखा है, या डांटने के बारे में नहीं बोलूंगा। So you see, before we come to our main title today, it's encouragement. लेकिन आज का मुख्य जो विषय है कौन सा था? प्रोत्साहन देने के बारे में या उन्नति करने You're के going to बारे be में। encouraged this morning, all of you. और आज सब लोग यहाँ पर जो बैठे हैं वो प्रोत्साहित होने वाले But हैं। before Amen. encouragement comes, Paul Amen. is writing that you need to patiently correct and rebuke. लेकिन प्रोत्साहन आने के पहले पौलुस याद दिला रहा है, आप प्रोत्साहित होने के पहले डांटना पड़ेगा, सुधार करनी पड़ेगी और He's- कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा। This is a pastor's job. It's part of his ministry. देखिए भाइयों बहनों, डांटना या किसी को सही राह दिखाना ये पासबान की सेवकाई होती है, उसका फर्ज होता है। I know when your pastor was alive, और मैं जानता हूँ जब पास्टर डावरे The little यहाँ I पर know, थे, यहाँ पर if थे, he said no is no. वो बड़े कठोर होते थे, नहीं मतलब नहीं होता था। If it goes against biblical principles, no is no. अगर कलाम के विरोध में कुछ चल रहा था तो बड़े वो हियाव से वहां पर खड़े होकर बोलते थे, नहीं मतलब नहीं। Some of you may have tasted of that. और कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको चखा You may होगा। not have liked it when he said that no. पास्टर डावरे नहीं मतलब नहीं बोलते थे, जिद्दी थे, और बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने नहीं बोला। That's a very good kind of ziddi. और ये जिद अच्छा जिद होता It's है। godly and holy ziddi. सुनिए, ये जिद जो Yes. पवित्र कलाम को पकड़े हुए रहता है वो अच्छा होता It है, was not in the flesh. क्योंकि ये शारीरिक स्वभाव में नहीं था। Your pastor was an anointed man of God. आमीन। पास्टर डावरे ये प्रभु के अभिषिक्त You सेवक और had a खादिम थे, chance of many years of learning from you. I did not have that. और ऐसे खादिम के नीचे रहने के लिए और सीखने के लिए आपको बड़ा खूबसूरत ऐसा मौका मिला Some जो of you मुझे may नहीं come मिला, इनको नहीं मिला। And come and tell me what pastor taught you, and you will say, "This is what pastor taught us." बहुत से लोग आकर मुझे बताते हैं, पास्टर साहब ने ऐसे बताया था ना, हमें ऐसा सिखाया था हमें पहले। So when it means no, it's no. नहीं मतलब नहीं, वचन Correct. के अनुसार। It says patiently correct. He did it with patience. दूसरे पद में लिखा है सहनशीलता से शिक्षा करो, And when किसी you- की सुधार करो। When you went astray, he rebuked. और जब आप गुमराह हो गए या राह छोड़ के चलने लगे तो आपको उसने डांट भी You may दिया, not have liked डांटा। it at first, डांटा, बहुत लोगों को डांटना अच्छा नहीं but you लगता, are bearing the good fruits today because of लेकिन that. उस डांट खाने के मारे ही आज अच्छे फल को आप अनुभव कर रहे हैं। And he That's right. does not have to answer for making mistakes or compromising. सुनिए, पौलुस को भी अब ऊपर जाके, No, not Paulus. I'm saying Sorry. your pastor. हाँ, पास्टर साहब को भी वहां जाके जब प्रभु के पास गए, उन्हें उत्तर या जवाब नहीं देना पड़ा प्रभु को कि उन्होंने कुछ कम कर दिया इस धरती It पे। is part of the ministry. नहीं, जो सेवा करनी थी उन्होंने You पूरी may की। not like it. बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। When you go to नहीं school लगेगा। and when you were corrected, you आप- didn't leave school. सुनिए, आप जब स्कूल में जाते हो और आपको कोई डांटता है, क्या आप स्कूल छोड़ के चले जाते हैं पीठ मुड़ा के? नहीं, नहीं। When the teacher asked you to write 100 times, I will not speak in class, you did not leave and say, I will not go back to school. सुनिए, जब टीचर आपको बोलता है अरे 100 बार वो एक शब्द लिखो अपनी किताब में, क्या आप गुस्सा होके बोलते हैं मैं छोड़ रहा हूँ, मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ? So नहीं। don't forget that the
servant of God, the pastor, the preacher, the evangelist, the apostle, the prophet, he has to go and answer to God because there is a more severe That's right. judgment on those who teach the word of God. देखिए भाइयों बहनों, आप अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन पासबान के बारे में भी सोचिएगा। अगर इन्होंने आपको सही रास्ता नहीं दिखाया और जो करना है, जो आप करते आपको करने दिया, तो ऊपर जाके उन्हें परमेश्वर को जवाब देना होगा कि यहाँ पर आपको उन्होंने सही मार्ग क्यों नहीं बताया। So it says, preach the word, be instant in season. यहाँ पर लिखा है वचन का प्रचार कर और समय असमय तैयार रहे। Instant means in the Greek episteme, which means the word in the Greek for instant. और यूनानी शब्द जो इंस्टेंट के लिए मतलब असमय के लिए जो शब्द है, It's a military term. ये एक मिलिट्री या सेना के संबंधित शब्द होता है। It means stand, इसका मतलब होता है कि खड़ा हो जा, be firm. खड़ा हो जा और बिल्कुल फर्म, धीरज से, व्हाट्स फर्म, स्थिर हो जा। Now it means stand at your post. तुरंत ये शब्द होता है हिंदी में, यूनानी शब्द उसका होता है कि तू खड़े हो जा। कहाँ पर खड़ा होना है आपको? तुरंत उस सेना के उस स्तर पे, उस जगह में। The Indian soldiers in the LOC, they are standing at their post, and that is what it means. You have to be alert at all times. जो भारतीय सेना के लोग हैं सीमा पर जो खड़े होते हैं, वो अपने अपने पद पर खड़े होते हैं और सतर्क हमेशा रहते हैं वहां पर खड़े For होकर। the Indian soldiers, it is fighting against flesh and blood, but for us, it is fighting against. सुनिए, सैनिकों के लिए, भारत के सैनिकों के लिए ये युद्ध का मामला होता है, लेकिन आपके और मेरे लिए क्या होता है? ये They engage in gun battle, but we engaging in a spiritual battle. आमीन। सैनिक जो होता है बंदूक से युद्ध लड़ता है, लेकिन आप और मैं आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं। हालेलुया। So the word that comes from the pulpit is another form of spiritual warfare. सुनिए, जो शब्द इस मंच पर से आप सुन रहे हैं, क्या होता है? आत्मिक युद्ध के संबंध में होता है। Now preaching and teaching the word अब वचन का प्रचार करना और वचन को सिखाना, can have a life-changing, yoke-destroying effect on people's lives. आमीन। वचन का पढ़ना और सिखाना, उसके द्वारा लोगों के जीवनों के ऊपर जंजीर तोड़ के टूट के गिर सकती है। Yes, it has That's an right. effect. वचन का परिणाम जरूर होता है। हालेलुया। And when the gospel is proclaimed, और जब सुसमाचार हम बोलते हैं, सुनाते हैं, the power in those words, these words that I'm speaking right now are not my words, these are words from the word of God. आमीन। जो शब्द मैं अभी बोल रहा हूं, उसमें सामर्थ होती है। कौन सी सामर्थ? वचन की, परमेश्वर की सामर्थ उसके वचन पर होती है। The word penetrates all those people who are living in sin. उसका मतलब जब मैं सुसमाचार सुनाता हूं, वचनों के द्वारा हर एक व्यक्ति के जिस्म और मन में घुस जाता है और वो परिवर्तित होते हैं, पाप के बारे में जागरूक So होते when we हैं। need to break strongholds, we use the word. आमीन। जब आपको दृढ़ गढ़ तोड़ने हैं, आपको वचन को इस्तेमाल करना Even है। when we want to release supernatural power in your life, Amen. it is through the word. सुनिए, जब आपको अलौकिक सामर्थ आपके जीवन से रिलीज करनी हो, तब वचन को And इस्तेमाल the best कीजिएगा। part of the word, this is what I love about the word, और वचन का दूसरा हिस्सा मुझे बड़ा पसंद है, और वो ये है, it transforms minds and lives and changes people. वचन या कलाम मनों को और दिमागों को बदलता है, परिवर्तित करता है, और लोग उसके द्वारा बदल For जाते हैं। some people, it takes less time. For some people, it takes a lot of time. सुनिए, बदलाव आने के लिए कुछ लोगों को देर नहीं लगती, पर कुछ लोग हैं जिनको बहुत समय लगता है भैया। So during these perilous times that we are living in right now, इसी कारण ये जो बड़े खतरनाक समय जिसमें हम सब आज जी रहे हैं, God wants to encourage us परमेश्वर चाहता है हम सबको प्रोत्साहित and करें, remind us what is coming ahead. प्रोत्साहित करना चाहता है सबको। आपको याद दिला रहा है आगे क्या आने वाला है। Who more better than God to encourage you this morning? सुनिए भाइयों बहनों, परमेश्वर से और ज्यादा आपको प्रोत्साहित कौन कर सकता है? And God uses His servants, His preachers, His pastors, His evangelists. That's right. He uses the fivefold ministry to Amen. encourage. सुनिए, परमेश्वर कैसे प्रोत्साहन देता है आपको? पासबानों के द्वारा, जो 5 प्रकार की सेवकाई या कलीसिया के, उसके द्वारा आपको प्रोत्साहित करता है, आपको इनकरेज करता है। He's using Paul to encourage Amen. Pastor Timothy. आमीन। तिमुथियुस को, जो पासबान था, उसको प्रोत्साहित करने के लिए परमेश्वर ने
पौलुस को इस्तेमाल किया। And Timothy had a big church. The bigger the church, the bigger the problems. अब तिमुथियुस की कलीसिया बहुत बड़ी थी, जितनी बड़ी कलीसिया उतने ज्यादा समस्याएं, मुसीबतें। Now, I don't know if many of you follow what is happening in the world. अब मैं नहीं जानता कितने लोग आप में से इस संसार में, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, हलचल मच रही है, कितने लोग जानते हैं। I follow them. मैं तो ज़रूर भैया पढ़ता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ। I don't just follow them because if you follow and then I link it to Bible prophecy. अब मैं सारी जान पहचान दुनिया की चीज़ों के बारे में क्यों करता हूँ? ताकि बाइबल में कलाम के भविष्यवाणी के साथ में इसको जोड़ के इसका अर्थ और मतलब निकाल सकता हूँ। It has a purpose for me to follow the certain events in the world. कुछ घटनाएं हैं, सुनिए, संसार में जो अभी हो रही हैं, उसको मैं क्यों जानना चाहता हूँ? क्योंकि बाइबल के अनुसार क्या क्या हो रहा है मैं समझ पाऊंगा। For it says in Isaiah 41:13. यशाया 41 में और 13 में लिखा हुआ So we है। are in perilous times. Like I said, we are in the last of the last days. Don't forget. सुनिए, बहुत खतरनाक और बुरा समय है और अंतिम आखिर समय इसको बोला जाता है। Now you say, Pastor, you're encouraging us, but you are telling us we're in the last of the last days. Yes, and things are going to get from bad to worse. आप तो बोलेंगे भैया पास्टर साहब, आप तो प्रोत्साहन तो दे रहे हैं, हमें बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या बोल रहे हैं कि सब चीजें खराब होने वाली है, अंतिम दिन Listen है। what the Lord wants to tell you this morning. लेकिन परमेश्वर आज आपसे ये बोलना चाह रहा है, सुनिए। 41:13 Isaiah. 41 यशाया और 13, 41 For 13। I, the Lord your God, will hold your right hand. यहाँ पर लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा। Hallelujah. Don't worry, Amen. if you're left-handed, He will hold your left hand too. अगर आप दूसरे हाथ से लिखते हैं तो बिल्कुल बुरा मत मानिए, परमेश्वर वो हाथ भी पकड़ Don't feel लेगा left out. और आपको नहीं छोड़ेगा वो। Yes. For I, the Lord your God, hold your right hand. परमेश्वर बोलता है, यहोवा बोलता है, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा It is I who say to you, और मैं तुझे बचाए रखूंगा। fear not, I am the one who helps you. आमीन। मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। Hallelujah. आमीन। Where does your help come from? आपकी मदद और सहायता कहाँ से आती है? Psalm 121:1. भजन में लिखा है 121 में पहले आयत में, I कहाँ lift से? up my eyes to the hills. मैं पर्वतों को मेरी आंखें उठाता हूँ। Where does my help come from? मेरी सहायता कहाँ से आती है? From whence cometh my help? This is King James Version. और ये अनुवाद में ऐसे लिखा है कि मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी? My help comes from the Lord, मेरी सहायता तो यहोवा से मुझे the मिलेगी। maker of हालेलुया। heaven and earth. जो सारे पृथ्वी का रचने वाला Hallelujah. परमेश्वर। So आमीन। where does your help come from? The Lord. आमीन। आपकी मदद, आपकी सहायता कहाँ से आएगी? यहोवा से। And He reminds you who He is. और वो आपको याद दिला रहा है वो कौन है। I am the maker of heaven and earth. वो आपको बोल रहा है मैं ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं हूँ, मैं स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करने वाला Yes, परमेश्वर I हूँ। made heaven first. मैंने पहले स्वर्ग को Then I बनाया created everything on earth. और फिर पृथ्वी के सारे चीजों की रचना मैंने हाथों से Then I की created man and woman. और फिर मनुष्य और उसके स्त्री को मैंने बनाया। He was always meant to have fellowship with them. हालेलुया। पहले से परमेश्वर का कि एक उम्मीद थी जिसको उसने बनाया, सृजनहार था वो, उसके साथ वो सहभागिता में But रहे। it was man that decided to let go of that right hand. लेकिन मनुष्य था जिसने निर्णय लिया, अरे जाने दो, मैं वो दायां हाथ छोड़ दूंगा। Now, I believe परमेश्वर का that छोड़ूंगा। when Adam was alone, he was always holding the right hand of God. अब मुझे ऐसे लगता है कभी कभी शायद आदम जब था पहले, जब बगीचे में होता था, परमेश्वर का दायां हाथ शायद पकड़े हुए रहता था। When someone else came in his life, फिर अब दूसरी कोई चली आई उसके जिंदगी में, he became all romantic. अब वो जब चली आई तब ऑटोमेटिकली कुछ हो गया। He said, her hands are softer. वो बोला होगा शायद इसके हाथ ज़्यादा मुलायम है उससे, I can see her. मैं उसको देख सकता हूँ। So he switched hands. तो आदम ने क्या किया, उधर हाथ छोड़ दिया, इसका हाथ पकड़ लिया। But then afterwards he complained about that person whose hand he was holding all the पर time. अब जिसके हाथ उसने पकड़े, उसी व्यक्ति के बारे में वो अब
गिड़गिड़ाने लगा, Remember? शिकायत Remember what करने he लगा। said? Oh, that woman that you gave me, याद आता she है? made me sin. उत्पत्ति में उसने क्या बोला? अरे परमेश्वर, वो स्त्री जो तूने मुझे दी ना, उसने मुझे पाप करवाया। You see how quick these things change, these relationships? देखिए रिश्ते इतने जल्दी बदलते हैं। That is why we say put God first in the relationship. इसलिए हम क्या बोलते हैं, कोई भी रिश्ता हो उस रिश्ते में परमेश्वर को पहला स्थान दे ही देना। Hallelujah. So do you think God is not, he can't see what is happening in the world today? क्या आपको लगता है परमेश्वर नहीं देखता? आज संसार में क्या क्या हो रहा है परमेश्वर को नहीं दिख रहा है? We just sang today, he's Alpha Omega, हमने आज ही गाया, अल्फा और ओमेगा वो है, the beginning and the end. आरंभ और अंत वो ही है। Hallelujah. That's So he right. comes from the end, he can go to the beginning. यदि वो अंत से भी शुरू करे, वो आखिर तक मतलब वो आरंभ तक जा सकता It's है। like on a YouTube video, जैसे YouTube पर आप वीडियो देखते हैं, you can start the video, आप स्टार्ट तो करते हैं you वीडियो, can push that little round thing to the end, पर सब लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, वो छोटा सा गोल होता है ना, उसको आगे आगे हम ढकलते हुए लेते you हैं। see the ending, हाँ, हम आगे आगे उसको लेते हैं और फिर एंडिंग जो है वो देखते you हैं, know the ending. क्योंकि हमें आखिर जो होता है वो समझने के लिए हमारा मन ज्यादा ये होता है। God also has given us a glimpse in the future. He's given us what's going to happen in the end days. सुनिए, परमेश्वर भी आखिर दिनों में क्या होने वाला है उसने पहले से बताया है। He has given you news that is 2000 years old and is happening today. 2000 साल से पहले जो खबर पुरानी थी 2000 साल की, वो आज भी आपके लिए नया करके बता रहा है। And all those who study Bible prophecy, all those men of God who've been, preaching about the end times are excited. They are so happy. That's right. बहुत सुनिए, बहुत प्रभु के दास है जो अंत के दिनों के ऊपर प्रचार कर रहे हैं और आज के दिनों में रहकर वो ज़्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, बड़े मतलब बड़े आनंद से भर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने सब दिख रहा है। And some of you may say they are mad or what? They are crazy. बहुत से आप में से लोग बोलेंगे, अरे वो लोग तो पागल हैं। How can they be happy? There's COVID. ये प्रचार करने वाले लोग खुश क्यों हैं? कोविड सब तरफ फैल रहा है, So many people losing their lives. कितने लोग अपनी जान खो बैठ रहे हैं। At the moment, there's rumors of wars, very major wars. और अभी अभी जो अफवाहें हैं इस युद्ध के बारे में सब तरफ फैली जा रही है। Now these are rumors, and if these wars do happen, अब ये तो ये केवल कहानियां हैं, लेकिन अगर ये युद्ध और अफवाहें, अगर ये युद्ध वाकई में हो गया it affects the whole world. तो पूरे संसार पर इसका परिणाम होता है। If Europe and Russia and if Russia invades Ukraine, if you follow the news, अगर सुनिए, अगर आप खबरें सुन रहे हैं, यूक्रेन पर अगर रशिया ने या रूस ने आक्रमण किया, and recently America has lifted up sanctions. If you don't understand, he has lifted up sanctions on Iran. तो बहुत बुरी बात होगी। अभी अभी आपने पढ़ा होगा, अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे उसको सारे हटा दिए। Now Iran has it will accelerate its nuclear program, and this is bad news for Israel. जो प्रतिबंध थे ईरान के ऊपर वो सब अमेरिका ने उठाकर निकाल दिए। अब ये बड़ी बुरी खबर है। So you can expect in the near future that Israel is going to go and bomb nuclear sites in Iran. That is something that's going to happen. और इसलिए आने वाले कुछ दिनों में आप इसकी अपेक्षा या उम्मीद कर ही देना कि कभी ना कभी इस्राएल जाके न्यूक्लियर वॉरफेयर के द्वारा वो हमला करेगा ही ईरान के ऊपर। That is why we need to encourage each other. इसी कारण एक दूसरे को हमें क्या करना है? इन दिनों में प्रोत्साहित करना है, उठाना है, Like he said, जैसे लिखा है। because we need to worry, because don't forget when Iran, there's war and there's no more fuel coming from there, and the ships will not be coming with goods. सुनिए, जब युद्ध चालू होएगा, ईरान के ऊपर हमला होएगा, वहाँ से आपको कोई भी फ्यूल नहीं मिलेगा, मतलब पेट्रोल डीजल के गैस नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ से तेल नहीं आएगा, ट्रक्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा। The stock markets would crumble. जो माल आता था गाड़ियों में भर भर के वो सब बंद होएगा, स्टॉक मार्केट बिल्कुल नीचे गिरेगा। Companies will close down. उसके मारे कंपनीज पूरे दुनिया में बंद हो जाएंगे। All the companies that do business with India are found in the US and in Europe. भारत के साथ जो कंपनी ज्यादा व्यवहार करते हैं यूरोप और अमेरिका में पाए जाते हैं। If Ukraine and Russia go to war, it's America and NATO, which is the European countries, they go to war. सुनिए, अगर यूक्रेन और ये रशिया युद्ध करने लगे
मतलब क्या, यूरोप और नेटो के जो राष्ट्र है वो युद्ध कर रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या पूरी दुनिया में फैलेगी। Don't forget, after the First World War, there was a Great Depression. भूलिएगा मत, पहला जब जागतिक युद्ध हुआ, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, उसके बाद में ग्रेट डिप्रेशन करके एक युग या एक समय आया In the पूरी दुनिया पर। 1930s, there was a total crash of the US stock market, and people who lost all, you know what they did? They were jumping from buildings. They gave up their lives. सुनिए, 1930 की मैं बात कर रही हूँ। अरे वो समय इतना बेकार था, क्योंकि महायुद्ध तब खत्म ही हुआ था। उसके बाद वाले दिनों में लोग खुदकुशी कर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे। क्यों? सब पैसा बंद हो गया, नौकरियां चली गई, खाने के लिए कुछ नहीं था, बच्चे रो रहे थे, बहुत बुरी कंडीशन सब तरफ फैल गई थी। Are you may saying, is this how you encourage us, Pastor? महामंदी बोलते हैं उसको। आप बोलेंगे पास्टर साहब क्या ऐसा प्रोत्साहन कोई देता है? You said you're going to encourage us. आप तो बोले प्रोत्साहन देने वाले आप। Matthew 6:31. मत्ती 6:21, मत्ती 6:21 Jesus speaks to the people. 6वां अध्याय। यहाँ पर यीशु लोगों से बातें कर रहा है। So do not worry. I'm reading from an NIV version. It's not the same, but you can follow if you want. और मैं एक दूसरे अनुवाद से पढ़ रहा हूँ, वो सेम तो नहीं है लेकिन आप सुन सकते हैं। You know, I get these versions so you can understand it better. So do not worry, saying, what shall we eat? वहाँ पर लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है तू इसके बारे में चिंता मत कर। चिंता मत कर, ये कहना मत कि हम क्या खाएंगे। Or what shall we drink? 31 में लिखा है, और हम क्या पिएंगे, Or what shall we wear? या क्या पहनेंगे। For the pagans run after these things, and your heavenly Father knows that you need them. क्योंकि अन्य जाति, यहाँ पर लिखा है, या जो भिखारी होते हैं, इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता So when है। things get bad in the earth, on the earth, इसीलिए सुनिए, जब सब तरफ चीजें खराब और बर्बादी की ओर चल रही है दुनिया में, your heavenly Father knows that you need to eat, you need to drink, you need to wear clothes. आमेन। आपका स्वर्गीय पिता जानता है। क्या जानता है? आपको कपड़ों की जरूरत है, आपको खाने की जरूरत है, आपको कुछ पहनने की जरूरत है। He's your heavenly Father. क्यों? वो आपका स्वर्गीय बाप, आसमानी बाप है। Even in perilous times, He takes care of His children. आमेन। बड़े बुरे खतरनाक समय में भी वो अपने बच्चों को संभाले रखता है। Then He continues. और फिर आगे जाके बोलता है वो, If you do this, अगर आपने ऐसा किया, you will get all that is said in the first verses. अगर ऐसा किया तो पहले आयतों में जो बताया था वो सब आपको मिल जाएगा। But seek first His kingdom and His righteousness. लेकिन सब कुछ पाने के पहले उसके राज का खोज करना, And all these things will be given to you as well. और ये बाकी के सारी चीजें आपको दी जाएगी। Therefore, do not worry about tomorrow, इसी कारण कल के बारे में चिंता मत for करना। tomorrow will worry about itself. सुनिए, चिंता मत करना कल के बारे में। क्यों? कल का दिन अपने आप के लिए चिंता करेगा। Each day has enough trouble of its own. क्योंकि यहाँ पर लिखा है, हर एक दिन का अपना अपना ये आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। Hallelujah. 34वीं Each day आयत। has enough trouble of its own. आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। So don't worry about tomorrow. इसीलिए कल के दिन की चिंता मत करना। God is encouraging you now. परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करना है, When you कर see रहा है। things are getting bad, जब आप सब तरफ देख रहे हैं कि चीजें बर्बादी की ओर चल रही है, when you बुरी hear of होती wars and rumors of wars, आप जब युद्ध के बारे में और युद्धों के अफवाहों के बारे में सुनते हैं, God is your provider. तब भी एक मन में लाइएगा, परमेश्वर आपका प्रावधान करने वाला परमेश्वर है। We sang it हालेलुया। this morning. Jehovah Jireh, He's our provider. आमीन। आज सुबह आपने वो गीत गाया, क्या गाया? यहोवा ईरे कौन क्या करता है? सब कुछ जरूरत पूरा कर देता है। Hallelujah. Now God, He doesn't come down Himself personally to encourage each one of you. सुनिए, परमेश्वर स्वयं उतर के नहीं आता है एक एक को प्रोत्साहित करने के लिए। That's the reason why He has a church.
इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया दी आपको। I say He has a church. सुनिए, मैंने आपको बोला परमेश्वर ने एक कलीसिया दी We है। have made many churches, many denominations. हमने मनुष्यों ने कलीसियाओं में भेदभाव लाए हैं, विभाजन लाए हैं। Some countries have called, Church of England. They have made the church. They've joined it to the state. बहुत से राष्ट्र है जिन्होंने अपने कलीसिया को उस राष्ट्र का नाम जोड़ा है, जैसे चर्च ऑफ इंग्लैंड। There is England no की कलीसिया। many churches. There's only one church, and that is the Church Amen. of Christ. बहुत ज्यादा कलीसियाएं नहीं है, एक ही है और उसको मसीह की कलीसिया कहलाई जाती है। Yes, but today because we just give a name to our church so that we can identify ourselves. हम एक नाम देते हैं कलीसिया को ताकि हम उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाए। Because there are so many churches now and denominations, and we need to identify ourselves because not all denominations follow the same doctrines. बहुत कलीसियाएं हैं और अलग अलग सिद्धांत सिखाए जाते हैं, लेकिन आपको सही कलीसिया में जाना है और जो सही सिद्धांत कलाम के आधार पर सिखाती है उससे अपने आप को जोड़ना है Now I make sure और उस that नाम को I लेकर लोगों को बताना है। follow the doctrine that the apostles taught. आमीन। मैं ये यहाँ पर बिल्कुल सावधानी से बताता हूँ कि हम प्रेरितों के सिद्धांतों को ही सिखाते हैं। And I do not add anything that comes from my way of thinking, that That's right. I think this is what Paul was trying to say, or this is what Jesus was trying to say, like many of the pastors and many of the teachers do. कलाम के वचनों को ध्यान से सुनिए। मैं अपने बुद्धि को चलाकर ऐसा नहीं बताता हूँ, अरे मुझे ऐसा लगता है ये वचन का अनुवाद ऐसा होगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत प्रचारक ऐसे करते, अपने मन को ही चलाते, अपने बुद्धि से इसका अर्थ बताते, वो गलत है। Hallelujah. So on Wednesday, how many of you follow the Wednesday Bible teaching? इसलिए बुधवार के शिक्षण को कितने लोग जुड़ते हैं? हाथ Lift up your hands. उठाइएगा। Don't be और shy. जो For सुनते those who हैं, don't, it's fine. You Yes. can do it's there on the page. You can always go back to it if you are interested, and if you want to study God's word. I am telling you, in the end days, it's God's word that's going to save. It's not signs, wonders, and miracles. Don't get delusioned. सुनिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, अंतिम दिन है ये। आपको अगर वाकई में सच्ची में सुनना होगा, जाकर आप फिर से रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, लेकिन ये आखिर दिन है भैया। आप अपने आप को फंसा सकते हैं, हमें फंसा सकते हैं, परमेश्वर को कोई भी फंसा नहीं सकता। Okay, समझ I में said I'm आया? not gonna इसलिए correct- आप सुनिए, आपके Yes. ईमान को बढ़ाने के लिए वचन बोला जाता I है, said I'm not सिखाया going to जाता है। correct this morning, but unfortunately, it ends up in correcting. मैं बहुत कोशिश करता हूँ किसी को डांटने को, मेरा मुंह बंद करे, लेकिन उसमें ही चला जाता है प्रचार। Bible teaching is important. That is why the word has been given to us, not to Amen. lie, not to make a book and sell Yes. copies. No, it's meant to keep Amen. on your shelf to get dust. It is meant to be That's read right. and to be understood. पवित्र शास्त्र या बाइबल या कलाम आपको कबर्ड के ऊपर रखने, अलमारी के ऊपर रखने के लिए नहीं दिया, या उसको किसी के सामने बिल्कुल सुंदर रूप से खोलने के लिए साल में एक ही बार नहीं दिया है, आपको पढ़ने के लिए दिया है, और हम उसी कलाम से आपको पढ़ाकर सिखाते हैं। You know, God has given you talents. वैसे ही परमेश्वर ने आपको कुछ कला दी है। Don't be like the one who has taken one talent and dug it and kept it under the soil. तोड़े दिए हैं सबको, तोड़े। आपको मालूम है वो दृष्टांत जहाँ पर तोड़े दिए थे? उस व्यक्ति के समान मत बनिए जिसने तोड़ा तो ले लिया और जाके उसने जमीन के अंदर छिपा दिया। That one talent was taken from him and given to the one who had the most. जिसने उसका तोड़ा छिपाया, वो तोड़ा उससे लिया गया, परमेश्वर ने छीन के ले लिया और दूसरे को दे दिया। In other words, दूसरे शब्दों he में, did not make it into heaven. दूसरे शब्दों में वो तीसरा व्यक्ति जो था जिसने छिपाया, स्वर्ग में वो नहीं जा पाया, Just taken away from him. स्वर्ग में नहीं गया, क्योंकि वो तोड़ा उससे छीन कर And दूसरे को given दिया। to the one who already had 10 and already he got his rewards, and he was added to his rewards. अरे वो तोड़ा उससे छीन के ले लिया और उसको परमेश्वर ने दिया जिसने 10 के 20 बनाए तोड़े, जिसने ज्यादा कर दिए उसके हाथ में वो एक तोड़ा डाल दिया। That is why I always say this. Don't forget that not every person that sits in a church will make it in the rapture. That's right. सुनिए, मैं बार बार बोलूंगा, आपको याद दिलाऊंगा, आप चर्च में कितने भी बार आए और कुर्सी पर बैठे, अगर आपका मन ठीक नहीं है, आप शायद
कलीसिया जब उठाई ली जाएगी, रैप्चर के उस घटना में आप शामिल नहीं हो जाएंगे। Hallelujah. सब लोग शामिल नहीं I'm होंगे। going to teach on the rapture very soon. I'm preparing it. और रैप्चर के ऊपर कलीसिया के उठा लिए जाने पर मैं प्रचार जल्दी करने वाला हूँ। Yes, I'll be preaching on that. मैं अभ्यास कर रहा हूँ, अभी तैयार कर रहा हूँ और मैं जल्दी प्रचार करने वाला हूँ। And you'll be surprised there are so many doctrines out there concerning the rapture. और आप बड़े अचंभित होंगे, इतने ज़्यादा सिद्धांत और लोगों के ओपिनियंस है इसके बारे में, एक घटना के बारे में। You need to make sure that you follow what I'm going to teach you, because I believe in the doctrine of the apostles, what लेकिन- they believed in. लेकिन हम जो आपको सिखाते हैं प्रेरितों का सिद्धांत उसको बोला जाता है, उसको आप पढ़ना, उसके पीछे उसके अनुसार चलना। क्यों? हम प्रचार कलाम को छोड़ के नहीं करते, प्रेरितों का सिद्धांत जो है वही सिखाते हैं। Hallelujah. So Amen. let's go back. So on Wednesday, Amen. we were introduced to a man called Barnabas in chapter 4, in verse I think 36. or अब something. पिछले बुधवार में मैंने बरनबास के एक व्यक्ति के बारे में आपको पहचान दे दिया, परिचय कर दिया। So his name was Joseph actually. और इसका नाम यूसुफ था वाकई में। Now the apostles, they liked him so much, and then they gave him a nickname. अब प्रेरितों को ये बरनबास बड़ा पसंद आ गया भैया, उसको उन्होंने एक नाम दे दिया। You see, he was a Levite. from the tribe बरनबास of कौन Levi. था? यूसुफ था उसका पहला नाम, और वो लेवी था। So he was accustomed to the teachings of the word and the Old Testament. याजक था और पुराने नियम के सारे शिक्षकों के बारे में या सिद्धांतों के बारे में उसको जान पहचान And थी। he was from, कहाँ से था वो? where did he come from? बरनबास कहाँ से आया बताइएगा? Okay, he was from Cyprus. Nobody, ग्रीस, या he was from Cyprus. ग्रीस में साइप्रस नाम के शहर से वो आया, So he was a Levi from Cyprus. और वो एक लेवी याजक था। कहाँ से था? ग्रीस के प्रदेश में से। So when the apostles gave him a nickname, many people have nicknames at home. बहुत से लोगों के घर में जो नाम देते हैं उनके माँ बाप, निकनेम्स बोलते हैं। But in the biblical times, the nickname was given according to the personality and the character of the person. लेकिन पुराने दिनों में ये जो दूसरा नाम दिया जाता था व्यक्ति को, उसके गुणों के आधार पर अनुसार या उसका चरित्र किस प्रकार का है उसको देखकर वो व्यक्ति को पहचाना जाता था। Now you know there's a little cartoon. I don't know. The young children might know Smurfs. I don't know if you know the Smurfs. और स्मर्फ्स करके It's a cartoon. एक कार्टून छोटे बच्चों के लिए कितने बच्चों ने देखा, मुझे No one पता knows? नहीं। I used to watch it. Smurfs. Brother Joel knows. हमने देखा है, इन्होंने देखा है जब He's छोटे होते also a थे। little Smurf. So there was many Smurfs. There was angry Smurf or strong Smurf or shy Smurf. You know, they all has a name अब because of the Smurfs personality. स्मर्फ्स करके ये कार्टून होता था बच्चों के लिए। उसमें एक पूरा राज होता था जहाँ पर ये छोटे छोटे सब जो बड़े डुअर्फ्स को क्या बोलते हैं, वो स्मर्फ्स होते थे और उनको सब स्मर्फ्स थे, परंतु उनको नाम ऐसा दिया जाता था, ये आनंदित स्मर्फ है, वो बड़ा दुखी स्मर्फ है, बड़ा दर्द भरा हुआ स्मर्फ है, ऐसे अलग अलग नाम Yeah, दिए there थे। was even a funny Smurf because he liked to joke. अब उसमें एक जोकर वाला स्मर्फ भी था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंसाता था सबको। So according to the personality, उनके गुणों के अनुसार या चरित्र के अनुसार they gave him the name Barnabas. इस व्यक्ति को भी बरनबास, वो स्मर्फ नहीं था, वो चेला था, उसको नाम दिया। So it means son of encouragement. बरनबास को एक उपनाम दिया था। इसका उपनाम का अर्थ क्या होता है? प्रोत्साहन का पुत्र। He was a man that would go and encourage people when they were downhearted. He was a man that would lift you up when you are down. ये ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जो आप अगर गिरे हो, आपका हाथ पकड़ के आपको वो खड़ा कर देता था। अगर आप निराश हो, आपको वो खुश करता था। That is what we do here. हम यही other करते words, हैं। we have to encourage you to do things. We have to Amen. encourage you to serve the Lord. We have to encourage you to come to church. सुनिए, हम क्या करते हैं भैया? यही करते हैं, आपको प्रोत्साहित करते रहते हैं। क्या करने के लिए? कलीसिया में आओ, प्रभु के पास आओ, प्रार्थना करो। We have to do this. हमारा फर्ज होता है, हमारा काम होता है करने के। It's the work of the church. ये कलीसिया का काम होता It है। is why God created the church. इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया को निर्माण किया। Now this Barnabas, he played a very big role in encouraging and also connecting people together. सुनिए, बरनबास का एक बहुत बड़ी उसकी भूमिका थी किसमें?
पहले कलीसिया में, और वो क्या काम करता था बरनबास? वो सारे लोगों को प्रोत्साहित करता था, खुश करता था, उनका ईमान और उनकी आशा उम्मीद बढ़ाता था। That is why next week we'll see how Barnabas played a great role in the ministry of Paul the Apostle अगले Paul. हफ्ते में हम देखेंगे, अगले वाले सप्ताह में बरनबास का पौलुस के सेवकाई में कितना ज्यादा योगदान था, वो हम अगले हफ्ते देखेंगे। Now we can see a picture. I think that's one day is Barnabas. The one who is bald has to be Paul, because we see many pictures of Paul had no hair. अब पौलुस जो है वो गंजा था, I think तो जिसके सिर के ऊपर बाल नहीं वो पौलुस है, बाइबल के अनुसार उसको बाल नहीं थे। so और दूसरा जो है वो बरनबास होगा। so this man Barnabas is known as son of encouragement, सुनिए, बरनबास का अर्थ होता है प्रोत्साहन का पुत्र। and he had a very gentle heart, and he was a very kind man. अब ये बरनबास व्यक्ति बड़ा अच्छा और बड़ा Humble, he was humble. प्रेम से भरा हुआ उसका दिल और हृदय होता था, बड़ा नम्र था। It is a quality that we need to achieve, that we need to work on. सुनिए, ये एक गुण होता है हमारे अंदर जिसको हमें ज्यादा कार्यरत करना होगा, And I say बढ़ाना we, होगा। it starts from here, it goes there, and I say we. Don't I'm not pointing fingers. at जब anybody. मैं बोलता हूँ मतलब यहाँ से शुरू होता है, मेरे से शुरू होता है, फिर सब लोगों तक पहुँचता In है। Philippians 2:3, Paul writes, फिलिपियोस में 2:3 में पौलुस लिखता है, chapter 2, verse 3. दूसरा अध्याय और तीसरा पद। Don't be selfish. फिलिपियोस, वहाँ पर लिखा है कि आप स्वार्थी मत रहना। Barnabas was not a selfish man. You will see when we read on Wednesday that he sold all his possessions in Cyprus and he brought it to the apostles' feet. आप देखेंगे कि बरनबास जो था वो बिल्कुल स्वार्थी नहीं था, अपने सारे जायदाद को लाकर कहाँ पर रखा उसने? प्रेरितों के चरणों पर रख दिया। Now there's a teaching on that too, how to discern how to give also to the church. इस पर एक दूसरा एक विषय भी है सिखाने के लिए, कैसा आप कलीसिया में आकर दे सकते, प्रभु के दासों को I कैसा दे thought that सकते, on वो अलग है। On Wednesday I thought on that. और बुधवार के दिन मैंने आपको वो सिखाया था। It was a revelation and it was a very it spoke to us. ये मेरे लिए प्रकाशन था और हमसे ज्यादा प्रभु ने इसके द्वारा बातें की। So I'm not going to waste time on that. We पर can उसके continue. पास उसके ऊपर हम फिर से नहीं जाएंगे, दोहराएंगे नहीं। So it says don't be selfish. That's what it means. Don't be done through strife. यहाँ पर लिखा है कि आप स्वार्थी मत रहना और स्ट्राइफ मतलब एक दूसरे के साथ आप ज्यादा संघर्ष मत करना। Don't try to impress others. दूसरों को आप इम्प्रेस करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ज्यादा कोशिश That मत is the word करना। vainglory. There. वहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है कि व्यर्थ महिमा अपने आप के लिए मत ले लेना। He did not sell his possessions so that झूठी he बढ़ाई। could get self-glory. बरनबास ने अपने सारे वस्तुओं को इसीलिए नहीं बेचा ताकि सब लोग उसको देख के उसकी वाह करे, झूठी बढ़ाई उसकी करे। Be humble, उसका मतलब होता है नम्र हो जाइए, thinking of others as better than yourselves. दूसरों के बारे में ऐसा सोचना कि वो हमसे ज्यादा बढ़कर, हमसे ज्यादा अच्छा वो है। You're going to find that when we continue next week, how he Amen. encouraged the Apostle Paul and made him feel that he is better That's than right. Barnabas, who is a Levite. सुनिए, बरनबास के बारे में अगले हफ्ते में हम देखेंगे कैसे उसने पौलुस के साथ साथ चल के भी क्या दिखाया। अरे पौलुस, तू मेरे से कहीं बढ़कर है, जबकि मैं लेवी हूं, मैं तुझसे कहीं छोटा हूं। You know, nobody wanted to meet Paul after his conversion. सुनिए, पौलुस से कोई भी मुलाकात नहीं करना चाह रहा था, जबकि पौलुस यीशु के पास आ भी गया, उसके बाद भी सब डर रहे थे उससे। Paul had Christian blood on his hands. क्यों? उसके पहले पौलुस कौन था? हत्या करने वाला था, उसके हाथ में मसीहों का लहू था। Listen, if God can forgive, if Jesus can forgive a man like Paul, सुनिए, अगर यीशु पौलुस के जैसे इतने क्रूर व्यक्ति को अगर माफ कर सकता है, no matter what you may have done in your life, past life, आपके पिछले जीवन में आपने कुछ भी किया हो, don't let the devil bring it up and don't let the devil make you feel guilty. वो पाप शैतान को आपके मन में फिर से लाने मत देना और आप दोष के नीचे मत रहते जाना। If you have repented, अगर आपने पश्चाताप या तौबा किया,
You need to repent. तौबा करना जरूरी होता For है. he died, he was wounded Yes. for our what? For our transgressions. वो काय के लिए घायल हो गया बताइए? आपके अपराधों के लिए. No matter what you have done in the इसका past, मतलब होता है कि आपने जो कुछ भी आपके पिछले जीवन you में have किया, confessed it before God and you have repented. कोई भी गुनाह हो, कितना बड़ा हो, आपने अगर कबूल किया प्रभु को, प्रभु ने उसको माफ कर And you दिया. have turned your back on that sin. और उस गुनाह के ऊपर आपने आपकी पीठ मुड़ाई, You have been set free. मतलब कि आप आजाद हो गए. Isn't that a good news? ये अच्छी खबर है या You नहीं? have been set free. आपको आजाद कर दिया That is the है. good news of the gospel of Jesus ये Christ. सुसमाचार की खुशखबरी बोली But जाती do है. not go, make sure you do not go back to that life. अब पाप को जिसको आपने छोड़ा और निकले आए, फिर से मुड़कर उस पाप में आप मत फंस The जाइएगा. devil is going to try and pull you back there. शैतान कोशिश बहुत करेगा आपको खींचने के लिए, उसी पाप में गिरने के लिए. You are fighting against principalities. सुनिए, आपका दुश्मन और शत्रु ऐसा वैसा मामूली नहीं है, वो शैतान है और उसके नीचे एक बड़ी सरकार और सत्ता भी That है. is why you need to have a Barnabas who comes to encourage you. God is not going to come. He has already Yes. has his men. He has already has his women, sisters and brothers who are going to help you. इसीलिए आपको बचा के रखने के लिए बरनबास जैसे लोगों की जरूरत होती है, भाई बहनों की जरूरत होती है, जो बार बार आपके पास आकर आपको उठाएंगे, आपको बोलिए नहीं भैया उठ जा, फिर से खड़ा हो जा और प्रभु में चलते रहे. Hallelujah. So right. he says, don't be selfish. Don't try to impress. Don't do these things with a selfish, with some emotion. You know what you call it? That's right. With Motive. with intentions. You know, yes. Ulterior motive. Interior. Whatever. Motive. और ये बरनबास बोल रहा था, ये जो बात आप कर रहे हैं प्रभु के सेवकाई में जो कर रहे हैं, लोगों की वाह लेने के लिए, शाबाशी Not लेने to के लिए मत impress. करना. No. Be humble. लोगों के ऊपर इंप्रेशन डालने के लिए मत करना, नम्र हो जाइए. Hallelujah. That's right. So नम्र हो we're जाइए. going to see how this, what happened to Paul after his conversion and how Barnabas played a role. We're going to see all that next week. Amen. अगले हफ्ते में हम देखने जा रहे हैं कैसा पौलुस के सेवकाई में कैसे बरनबास का बहुत ज़्यादा योगदान था, और इसीलिए सेवकाई पौलुस की बहुत ज़्यादा बढ़ी और फैल गई. And even as we continue the study in the Acts of the Apostles, we're going to go through that again. But since many of you do not get time to follow us on Wednesdays, and you don't even get time to go back and see the recording, which is about, it's only 1 hour. I do not go maybe sometime 1 or 2 minutes, but I do not go more than 1 hour. You can, बुधवार का जो होता है प्रवचन आपको सुनना होगा भाइयों बहनों. आपको बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, मुझे मालूम है कलाम को सुनने को, मतलब उनका मन क्या बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं कंटाड़ा है, तो पर आपको जाके फिर सुनना होगा. बहुत लोगों को यदि सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है, बुधवार के दिन जो सिखाया जाता है प्रैक्टिकल टीचिंग होता है, आपको बढ़ाने के लिए होता है, आपकी उन्नति करने के लिए होता है. सुनना, जरूर सुन लेना. it's different from Sunday service. रविवार के आज के सभा से बुधवार की जो सभा होती है अलग होती है, I do verse by verse. क्योंकि एक एक वचन को उठाकर मैं आपको समझाता हूँ, Verse by verse, and I explain समझाता each हूँ. verse. और एक एक वचन को आपको समझाकर And it बताता हूँ, takes time और समय लगता to है. research this. It takes more time to prepare a sermon on Sunday. वेडनेसडे So no, it takes more time to prepare a message for Sunday, because Sunday goes into details. और रविवार के दिन जो डिटेल्स में हम जाते हैं उसके लिए समय लगता है, मुझे रिसर्च करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए. So we continue now. So Paul had a visitation from Jesus on the road to Damascus. We all know this. दिमिश्क के रास्ते पर पौलुस का एक बड़ा अनुभव मिला यीशु के साथ. Now in Acts chapter 9:27, which we're going to look at this again on next Sunday. और अगले रविवार में हम प्रेरितों के किताब में से 9वें अध्याय को फिर से देखने वाले It हैं. says that then Barnabas brought him, that is Paul, to the apostles and told them how Saul had seen the Lord on the way to Damascus. 9:27. 9 और 27 में हम देख लेंगे. परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा. And how the Lord had spoken to Saul. और शाऊल के साथ परमेश्वर कैसे बातें कर रहा था. And he also told them that Saul had preached boldly in the name of Jesus in Damascus. और कैसे पौलुस बड़े हियाव के साथ
वो प्रचार करा था. Yes, David, please just turn this thing a little bit. Thank you. And Barnabas went, so that means Barnabas went to Paul and encouraged him and took him into the ministry. और फिर बरनबास जाके पौलुस को कहाँ पर ले गया? सेवकाई में ले गया, सेवा करने के लिए, उसको मदद करने के लिए. Hallelujah. Now you see the importance of a son of encouragement. अब आप प्रोत्साहन के पुत्र को, उसके एक उदाहरण को देख रहे हैं क्या यहाँ पर? See, Barnabas was a good man. बरनबास एक बड़ा अच्छा व्यक्ति था. Let's see, we see that in Acts 11:24. प्रेरितों के काम 11:24 में हम देखते हैं. You know, not anyone, if you want to be called a brother or a sister of encouragement, this is what qualities that you need. सुनिए, अगर आपको एक भाई, एक पुरुष या स्त्री प्रोत्साहन करने वाले, अगर आप चाहते हैं कि लोगों ने आपको पहचानना चाहिए, तो ये गुण आपके अंदर होने चाहिए. For he was a good man and full of the Holy Ghost and of faith. यहाँ पर लिखा है क्योंकि वो एक भला मनुष्य था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था. And much people was added to the Lord. और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले उसके मारे. हालेलुया. Amen. So this is the result of what happens when you're a good Amen. man and you are full of the Holy Spirit. सुनिए, ये नतीजा होता है कब? जब आप अच्छे पुरुष या भला मनुष्य बनते हो और पवित्र आत्मा और विश्वास और ईमान से भरपूर होते हो. After the day of Pentecost, after being filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद में, पेंतिकोस्त के दिन के बाद में, It says that Peter, once again, after facing the Sanhedrin, यहाँ पर लिखा है कि पतरस उस यहूदी धर्म सभा के सामने खड़े होने के they all बाद came together, the church came together, and they prayed for something called boldness. कलीसिया सब आकर इकट्ठा हो गई और उन्होंने कौन से चीज के लिए प्रभु को मांग लिया? हियाव. God was Yeah. pleased with that prayer. हिम्मत उनकी बढ़ाने के लिए. परमेश्वर को वो प्रार्थना बहुत अच्छी The लगी. place where they stood, where they were in, shook. The Hallelujah. earth shook. There was an earthquake. जब ये लोगों ने हिम्मत बढ़ाने के लिए प्रार्थना की, कलाम में ऐसे लिखा है, वो सारी जगह, वो कमरा हिल गया और भूमिकंप वहां पर हो And गया. again it says, Peter was full with the Holy Spirit. Amen. उसके बाद वाले वाक्य में बयान ऐसा किया है, पतरस तुरंत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, भर गया. Hallelujah. You know, Amen. I once heard a teaching and it came from somebody close. He said that, you don't have to call again for God and say, fill me, Lord, fill me. No, it already happened. You're already full. You don't have to ask again. No, you have to ask again. एक पासबान का मैंने प्रचार सुना था कुछ दिन पहले, वो ऐसे बोलते थे, कुछ साल पहले. Many years he was, actually, I won't say who he was. मैं बताऊंगा नहीं कौन है वो, लेकिन वो थे और उन्होंने ऐसे बोला कि एक बार आप भर जाते हैं ना पवित्र आत्मा से, बार बार दोबारा मांगने की जरूरत नहीं. आप भर गए, बस बार बार क्या मांगना है, पवित्र आत्मा भर दे, भर दे. I knew this verse and I was grieved when he said that. अब मुझे ये आयत मालूम थी तब, और जब इस पासबान ने ऐसे बोला, मेरा मन बड़ा शोकित And I हुआ. had a chance to preach in the church in the next few weeks, and I spoke on this again, and no one could say anything else because it came from the अब word. कुछ हफ्तों के बाद में मुझे मौका मिला उसी कलीसिया में प्रचार करने के लिए, और मैंने बरनबास के बारे में वहाँ पर प्रचार किया, और मैंने बोला नहीं, पवित्र आत्मा से भरना ज़रूरी होता है. जब मैंने बाइबल में से ये दिखा दिया उन लोगों को, एक भी उठकर मेरे सामने आकर कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं, बोलने नहीं पाए. You can ask to be filled again. क्यों? इस वचन के आधार पर आप फिर से पवित्र आत्मा को मांग सकते, मुझे भर दे. And he will Hallelujah. fill you. और वो आपको जरूर भर देगा, परिपूर्ण कर देगा. For you know why we need encouragement in these days? आपको इन दिनों में प्रोत्साहन की जरूरत क्यों है? You see, Paul told Timothy again, Pastor Timothy, तिमुथियुस को, ध्यान से सुनिए सब, पौलुस ने तिमुथियुस को, जो पासबान था, उसको बोला, for the time is coming ऐसा बोला, देख समय आ रहा है when people will not endure sound teaching. That is 2 Timothy 4:3. 2 तिमुथियुस 4:3 में से हम पढ़ेंगे. We'll read it quickly. It's so people would not like sound and would not want to endure sound teaching. वहां पर लिखा है कि लोगों को अच्छे सिद्धांत सुनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, खरा उपदेश सह नहीं कर पाएंगे. But having itching ears, लेकिन उनके कानों की खुजली के कारण they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions. अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे, चुन लेंगे. You know, there are many pastors, famous pastors, TV evangelists who, when they start writing books, they start writing their own doctrines and they start
diverting from the word of God. बहुत टीवी इवेंजलिस्ट या प्रचारक है, सुनिए, जब वे बड़े मशहूर होने लगते हैं, क्या करने लगते हैं? अपने अपनी किताबें अब छपवाने लगते हैं, अपने अपने सिद्धांत उसमें लिख देते हैं, जो कलाम के आधार पर नहीं वो भी लिख देते हैं और लोगों को बताते हैं. Yes, one of them is famous, and I won't tell his name, but he wrote that Jesus did not mention that he was the Messiah of the Jews. That means we cannot accuse the Jews of killing their Messiah. सुनिए, एक इनमें से एक टेली इवेंजलिस्ट बड़े मशहूर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ऐसे बताया, यीशु कभी नहीं बोला कि मैं यहूदियों का मसीहा हूँ, इसलिए अगर यहूदियों ने मसीहा के रूप में उसको नहीं स्वीकार किया तो उनकी गलती नहीं है, ऐसे बोल दिया वो. He's written a book on that. और इसके ऊपर किताब भी छपवाई. So today we need to discern, and we need to make sure that That's we right. are listening to sound teaching. आज आपको सतर्क रहना है. आप किसका उपदेश सुनते, प्रचार सुनते हैं, क्या ग्रहण करते हो, आपको सतर्क होकर सुन के ग्रहण करना होगा. So why do we preach the word of God? हम कलाम क्यों प्रचार करते हैं? Why does God raise up pastors who not only go around and telling people this is what you have, this sickness, and this is what's happening in your life, and I need to pray for this, I need to pray for that, but he makes sure that they teach the word. Jesus himself taught the word before doing any miracles. सुनिए, यीशु मसीह ने खुद क्या किया? वचन को पहले सुनाया, उसके बाद में चमत्कार कर दिए. आज के जो प्रचारक ज्यादातर क्या कर रहे हैं, लोगों को जाकर बता रहे, देख तेरे जीवन में ऐसा हो गया है, परमेश्वर ये करेगा, तेरे जीवन में वैसा वैसा हो रहा है, परमेश्वर तेरे लिए ऐसा ऐसा करेगा, आगे जाकर भविष्य में तेरा ऐसा ऐसा होएगा. बस लोगों के कानों की खुजली के लिए वो लोग ये बोलते हैं. Before catching that miraculous fish in Peter, who caught that miraculous fish, he had to listen to a sermon first. सुनिए, पतरस को वो बड़ा फसल या मछलियों का बहुत ज्यादा वो मिलने के पहले क्या करना पड़ा? प्रचार को सुनना पड़ा. Obviously, he had no choice because Jesus was standing in his boat. सुनिए, पतरस को प्रचार भैया सुनना ही पड़ा. क्यों? यीशु उसके नाव में खड़ा था. But Jesus is, everything that he does, he knows well. It's planned well in advance. यीशु जो कुछ करता है बड़ा अच्छा और बड़े अच्छे तरीके से करता है, क्योंकि पहले से उसने उसका आयोजन He saw किया. Peter before Peter even knew that he would become a fisherman of man. आमीन. सुनिए, पतरस को यीशु ने पहले से ही देख लिया. वो तो मछुआरा था, मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन यीशु जान रहा था ये आगे जाकर लोगों को मेरे राज में लाने वाला है. Peter was a very, the character of Peter was, I don't know if it's the same that we watch in the film, but Peter was a very outspoken. He was very wild. He was a wild kind of man. सुनिए, पतरस जो था, अरे वो बड़ा मुखर ऐसा व्यक्ति था, कुछ भी बोल देता था, बिल्कुल उसमें कुछ जेंटलमैन जैसा कुछ भी नहीं था. He was rebuked more हमारी भाषा में जंगली by बोलेंगे. Jesus more than the others. अब दूसरों से ज्यादा चेलों में पतरस को ज्यादा यीशु डांटता था. Don't forget, डांटता था उसको. if you read the Gospels. अगर आपने सुसमाचारों को पढ़ा, So Peter was a very, outspoken, very, character. He was very. और वो ऐसा ही व्यक्ति था, उसके गुण थे, मतलब वो कुछ भी बोलता था बिना सोच के, बिना कुछ मन लगा के, दिमाग लगा के बोल देता था बस, और कुछ भी करता था. But yet these रुकता नहीं था. are the people that God chose इस प्रकार के लोग थे जिनको परमेश्वर ने चुना to be His disciples. उसके चेले बनने के लिए. हालेलुया. Amen. आमीन. So why do we preach the word? अब ये इधर सवाल आता है, हम सुसमाचार क्यों बताते हैं? The Bible says so faith comes from what? From hearing. बाइबल में कलाम में वचन है, विश्वास कहाँ से आता है बताइए? सुनने से. Hearing from what? क्या सुनना है? Radio, TV. कहाँ से सुनना है? रेडियो से, Hearing टीवी से? from the word of God. नहीं, कलाम के द्वारा जो आप सुनते हैं. In other words, they Hallelujah. say from the word of Christ. दूसरे शब्दों में मसीह के वचन सुनने से. The word of Christ. मसीह के वचन सुनने के द्वारा. He is the Alpha, He is the Omega, He is the Genesis to Revelation. वो अल्फा, वो ओमेगा, वो उत्पत्ति और वो प्रकाशित वाक्य. He has been there from the beginning. वो आरंभ से होकर आया है. And हालेलुया. He's there till the end. और वो अंत तक रहेगा. And He's coming back again. और वो वापस आ रहा है. That is why we need to faith, our faith needs to increase. इसी कारण आपका ईमान, आपका विश्वास क्या होना है? कम नहीं होना है, बढ़ना है. It says if we store up the word of God in our heart,
ऐसा वचन है, अगर आपने प्रभु का वचन आपके मन में अगर स्टोर किया, भंडार में अगर आपने रखा। Yes. You store many things in pen drives, you store many things in external hard drives. हम बहुत चीज़ों को बचा के रखते हैं, किस में, पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं, कंप्यूटर की भाषा बोल रहा हूँ, हार्ड ड्राइव्स में स्टोर करते हैं। So, what do you store? और इसलिए आप क्या स्टोर कर रहे हैं, आप क्या बचा के रख रहे हैं? It says if we store up the word of God in our heart, ऐसा लिखा है, वचन को अगर आपने आपके जीवन बचा के रखा, it will enable us to fight sin. आमेन, अगर इसको बचा के आपने रखा तो आपको पाप के ऊपर जय या फतह पाने के लिए शक्ति मिलेगी। Yes. Amen. Hallelujah. Amen. It will enable you to fight sin and also not to commit sin. सुनिए, अगर आपने प्रभु के वचन आपके हृदय में रखे तो आप पाप के ऊपर जय पाएंगे और पाप के विरोध में क्या कर पाएंगे, युद्ध भी लड़ पाएंगे। That is why the हालेलुया। psalmist wrote, I have stored up your word in my heart that I may not sin against you. आमेन। इसीलिए भजनकार क्या बोलता है, मैंने तेरे वचन को मेरे दिल के अंदर रखा है, रख छोड़ा है, ताकि मैं तेरे विरोध में पाप ना करूं। That is why we have the church. इसी कारण कलीसिया भी दी गई है हमें। God wants to create sons and daughters of encouragement. परमेश्वर चाहता है प्रोत्साहन के पुत्र और बेटियां तैयार हो जाए। So that you may store up, you need to store up the word in your heart. क्यों भैया, सुनिए ध्यान से, आपको वचन को आपके दिल में रखना है, That we may not sin against our God. बचाए रखना है। क्यों? ताकि आप परमेश्वर के विरोध में पाप ना करें। And that we may be an encouragement to others who are weak, और who are औरों के downhearted, लिए- who are broken. Sorry. औरों के लिए प्रोत्साहन का कारण आप बने, जो लोग बिल्कुल टूट गए हैं, बिल्कुल निराश हो गए या बीमारी में गिर गए हैं, The weak. जो कमजोर है, Yes, the sick. जो कमजोर है, जो बीमार है। For those who are sick right now, if you're listening to us. अगर कोई बीमार है, वहां पर जो देख रहे हैं, अगर आप में से कोई We बीमार है, sang this morning, Jehovah Rapha. He's our आमेन, आज healer. सुबह हमने गाया, यहोवा राफा, चंगाई देने वाला You will परमेश्वर। receive your healing. आपकी चंगाई आप ग्रहण कर लीजिए। Yes, even though it's through the net, you can receive your healing. यदि इंटरनेट के माध्यम से भी हो, तब भी आपकी चंगाई आप ग्रहण वहां पर भी कर सकते हैं। The word of हालेलुया। God is here to encourage you and to strengthen you. शरला बरिया ने, सुनिए, परमेश्वर का कलाम यहाँ पर आपको ताकत देने के लिए, मजबूत करने के लिए दिया। Where does my help come from? मेरी सहायता कहाँ से आती My है? help comes from the Lord. मेरी सहायता परमेश्वर से आती है। Maker of heaven and हालेलुया। earth. जो इस पृथ्वी का सिरजनहार रचने वाला हालेलुया। परमेश्वर है। हालेलुया। That is why it says. Amen. Our last verse. We close with this हालेलुया। morning, this शरला afternoon. बरियंडे। आइए इस आयत से इस दोपहर की सभा को हम समाप्त कर देंगे। Yes, Hebrews 10:24. इब्रानियों की पत्री 10:24। Now we don't know the real writer of this book. अब किसने इस किताब को लिखा, जो लेखक है वो सही ढंग से हम नहीं जानते किसने लिखा। Some of them say it's the Apostle Paul. Many of them say it's also the Apostle Barnabas. बहुत लोग बोलते इब्रानियों की पत्री शायद पौलुस ने लिखी होगी या बरनबास ने भी लिखी होगी, ऐसा हो भी सकता है। So we don't know the exact writer. इसलिए लेखक कौन है वो ठीक से हम नहीं One day जानते। we'll find out. ऊपर जाके एक दिन हम जरूर समझ पाएंगे। Hallelujah. आमीन। So it says in the New Living Translation, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। Hallelujah. And और let us not neglect our meeting together. सुनिए 25 ध्यान से पढ़िए, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने ना छोड़े। Listen, it starts with encouragement. ना छोड़े। No, it starts with शुरुआत कैसी encouragement. होती है? प्रोत्साहन देने से। Now it's going to correction. And प्रोत्साहन देने के बाद में Yes. डांट रहा है। Listen, and let us not neglect our meeting together as some people do. These are not my words. Listen, read there. भाइयों बहनों सुनिए, पढ़िए, ये मेरे शब्द नहीं। एक दूसरे के एक साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, मेरे शब्द नहीं है, पौलुस बोल रहा, जैसा कि कितनों की रीति है। मतलब Hallelujah. बहुत से लोग ये करते भी है। Let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of his return is drawing near. आमीन। पर एक दूसरे को समझाते रहे
और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। This was written almost 2000 years ago. ये आयत भाइयों बहनों 2000 सालों से भी ज्यादा अधिक पहले लिखी गई थी। Yes. And we have to live our life as if Jesus is coming tomorrow. हमें हमारे जीवन को इस रीति से व्यतीत करना है जैसे मानो यीशु कल ही आ जाएगा। That is why they have been saying that Jesus is coming, Jesus is coming. And इसलिए we've been saying this for 2000 years. लोग कहते आ रहे 2000 सालों से देखो यीशु आ रहा है, यीशु जल्द आ रहा है, यीशु जल्द आ रहा है। But we thank God for Bible prophecy. लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हम देते हैं भविष्यवाणी के लिए जो That कलाम में लिखी है। Today we see the signs that He is really coming very soon. आमीन। सुनिए, आपको भविष्यवाणी परमेश्वर ने इसलिए दी ताकि आप चिन्हों को देखें और चिन्ह को देखने के बाद में आप जान लेंगे यीशु का आमद बहुत ही जल्द और निकट आ He's coming to पहुंचा है। take a church. He's बहुत ही blind. निकट आया है, He's वो coming उसकी to take his कलीसिया को bride. ले जाने के लिए आ रहा है। And the men know what joy it Hallelujah. is to go and bring your bride home. और फिर पुरुष ये अच्छी तरीके से जानते हैं कितना आनंद होता है जब वो जाता है, पुरुष जाता है, दुल्हा जाता है, अपनी दुल्हन को घर ले आता है तब। Especially if you come from far away. खास तौर से अगर आप दूर से आते हैं। So the days are coming that Jesus is coming very soon. इसीलिए ऐसे दिन आ रहे हैं जब यीशु बहुत ही जल्द आएगा। And we need to, the Bible says, do not neglect meeting one another. बाइबल में लिखा है एक दूसरे को मिलने का आप इनकार मत कीजिए, उसको नजरअंदाज मत कीजिए। Don't neglect that. सुनिए भाइयों बहनों, एक दूसरे को मिलने से आप दूर मत भाग And जाइए। he's even warning that some people do. That means even in the days of when Hebrews was written, people were not going to church like they should be going. सुनिए, इब्रानियों की पत्री जब वो लेखक लिख रहा था, ये आयत क्यों लिखी कि आपको इकट्ठा होना जरूरी है? क्योंकि लोग इस समय में भी इकट्ठा नहीं हो रहे थे, मतलब कुछ भी बहाने देते देते घर में बैठते थे। But encourage one another. यहाँ पर लिखा एक दूसरे को उकसाना, I've मतलब प्रोत्साहित करना। The word has encouraged you this morning. आमीन। मैं चाहता हूँ, जानता हूँ आज के वचन के द्वारा जरूर लोगों को प्रोत्साहन मिला होगा। Like I said, these are not my words. I took this from the word of Christ. अब ये मेरे शब्द नहीं थे, मैंने प्रभु के कलाम से ले लिए हैं। And the day of His return is drawing near. आमीन। यीशु की आमद बहुत जल्द और बहुत निकट आ पहुंची है। Hallelujah. We will. हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for Bless your you, word Jesus. this morning. Hallelujah. परमेश्वर धन्यवाद देते आज तेरे कलाम के लिए। Thank you for this word of encouragement. ओ आज के इस प्रोत्साहन के शब्द के लिए धन्यवाद हो। We ask you to encourage each person that is sitting here this morning. हर एक व्यक्ति को आज तो प्रोत्साहित कर जो जो यहाँ पर बैठा है। Yes, oh Abba Father. ओ आसमानी खुदा, For this is the day you have made, and we will rejoice and be glad. ये दिन तूने बनाया, इस दिन में हम आनंद करेंगे। We will rejoice and be glad. आमीन। आनंद मनाएंगे, हर्ष करेंगे। For we हालेलुया। know we can do all things through you, Lord. क्योंकि हम जानते हैं तेरे में, तुझ में हम सब कुछ कर पाते हैं। For you are the source. You are the giver of our आमीन। strength. तू स्तोत्र है, तू सारे ताकत देने में तू हमारे लिए तू समर्थ है। You are the one that reminds us to be strong and courageous, just like you reminded Joshua. आमीन। जैसे तूने यहोशू को याद दिलाया कि वो बलवंत रहे, बलवान हो जाए, ताकतवर हो जाए, वैसे That हमें we तो need बोल to रहा rely on you हमें तुझ पर निर्भर होना जरूरी है for strength ताकत पाने के लिए। and not to be afraid. ओ हमें डरना और घबराना नहीं है। You promised to strengthen us. तूने अभी वचन दिया, परमेश्वर वायदा किया कि तू हमें ताकत देगा And uphold us. ओ तू हमें उठाएगा, Just like the psalmist wrote. जैसे भजनकार ने लिखा, Yes, King David, दाऊद ने लिखा, a man after your own soul. जो Heart. तेरे दिल का करीब मनुष्य था। The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? दाऊद ऐसा बोला, परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? Yes, the Lord is my stronghold. ओ जरूर परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ My है, life. मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। Of whom shall I be afraid? किससे, मैं किस मनुष्य से Of whom shall डरूं? I be afraid? मैं नहीं घबराऊंगा। We pray this morning, Lord. आज सुबह मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, Just like
You raised up a Barnabas, शरलबरिया ने जैसे बरनबास को तूने खड़ा a कर दिया, son of encouragement. ओ प्रोत्साहन का पुत्र तूने खड़ा कर I दिया। pray that you raise up son and daughters of encouragement in Lord. the Kabod temple. ओ कबोट टेम्पल की कलीसिया में भी प्रोत्साहन के पुत्र बेटे और बेटियां In खड़े each कर। family, there will be a Barnabas Yes. there to encourage. हर एक परिवार में बरनबास जैसे व्यक्ति को खड़ा कर जो प्रोत्साहन देता जाएगा। He or she will be a source of encouragement, will be someone who is Yes, humble. Lord. उस व्यक्ति को खड़ा कर जो नम्र रहेगा और सबको उम्मीद देगा, Will be आशा someone who देता is जाएगा, kind and compassionate. जिसके मन में तसल्ली भरी होगी लोगों के लिए, तरस खाएगा लोगों पर, And will dwell in the word. और जो तेरे कलाम के अनुसार चलेगा। I pray for this church, इस कलीसिया के लिए मैं from the दुआ करता youngest to the हूँ, oldest, सबसे छोटे से लेकर बड़ों तक, that we become a church of encouragement. कि हम प्रोत्साहन की कलीसिया बन जाएं। I pray that, Lord, I become a servant of encouragement, a pastor of encouragement, a teacher of encouragement. ओ मेरे लिए मैं दुआ कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे एक पासबान बना जो तेरे दिल के करीब है, जो प्रोत्साहन देने वाला है, जो तरस खाने वाला है, प्यार करने वाला है। Yes, Lord, and I encourage this church, Lord, that we will not neglect the assembly of this church, Yes, Lord. assembling each Sunday. और जो लोग हमारे कलीसिया में तूने हमें दिए हैं, एक एक को प्रोत्साहित करके इकट्ठा होने में मैं सबको, हम सब आ सकेंगे। हमारा मन तू बदल दे, For we know that the days of your coming is soon. क्योंकि हम जानते हैं तेरे आमद के दिन बहुत ही जल्द और बहुत ही निकट आए। Yes, Lord, very soon we're going to hear the shout of the archangel and the sound That's of the right. trumpet. बहुत ही जल्द उस फरिश्ते की आवाज हम सुनेंगे और उस नरसिंगे की आवाज भी Until then, सुनेंगे। Lord, we want to be encouraged. ओ तब तक हमें प्रोत्साहित We want कर, our faith to रहने दे, increase. हमारे ईमान को बढ़ाते रहा। For each person who's living, who is sitting here right now, हर एक व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर बैठा है, we pray for a portion of faith. Yes, Lord. आमीन। विश्वास का प्रमाण और मात्रा उन पर बढ़ा कर दे। Receive it, for it's a gift of God. Amen. आइए। Receive faith, which is a gift from God. भाइयों बहनों, विश्वास और ईमान को स्वीकार कर लीजिए, प्रभु का वरदान है। Faith that can move mountains. ओ इस प्रकार का विश्वास दे जो पर्वतों को हिला सकेगा। Faith that would say to the mountain, be Rabba lifted up and be shalala thrown bere. into the sea. इस प्रकार का ईमान हमें दे जो बोलेगा उस पर्वत को उठाकर समुद्र में जाकर गिर जा और वो हो Oh, जाएगा। we pray for that faith this morning, इस Lord. प्रकार का विश्वास सबको दे दे यीशु के नाम से। Fill us up with that faith. यस लॉर्ड, हमें भर उस विश्वास से, मुझे भर प्रभु, Hallelujah. मुझे भर Hallelujah. प्रभु। Hallelujah. यस लॉर्ड। Oh, shabadadadabo, रियंदलबे shabadadabo, समरबे shabadadabo. Yes, you are. रबबायंदललले Yeshua, योरबो Yeshua, संदललले। The author of our faith. You are the one. तू ही है परमेश्वर You जिसकी are- ओर हम देखते हैं। We हालेलुया। pray to you, oh Yeshua. शलोलेबे यीशु, तुझे हम देखते हैं, Give us faith, हमें विश्वास दे। mountain moving faith. ओ पर्वतों को हिलाने वाला विश्वास Fill us up this morning, कि अंधकार हमारे सामने से भाग from the जाए, youngest to the oldest. सबसे छोटे से लेकर बूढ़े तक। Oh yes, we ask these things. आज के दिन तुझे मांगते हैं For परमेश्वर, thy is the kingdom, क्योंकि राज तेरा है, the power and the glory, कुदरत और जलाल तेरा है, forever and ever. हमेशा के लिए। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Hallelujah. Let's receive the benedictions. आइए हम सब हाथों को उठाकर आखिर जो आशीष को पालेंगे। Now may the grace of our Lord Jesus, और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of our Father God, हमारे पिता परमेश्वर का प्यार and the sweet and loving fellowship of the Holy Spirit और उसके पवित्र आत्मा की मधुर संगति be with each and every one of you now and forever. आप सबों के साथ आज से लेकर अब तक रहे। Amen. आमीन। Amen. God bless you all and shalom. आमीन। प्रभु सबको आशीष दे और सभी भाई बहनों को शालोम।